اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here you are watching your favorite Quranic religious program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathore. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 28 to 32 of Surah Ash-Shura of the 25th part of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the canon of Sharia, according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran,
and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu English translation. And in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses of Quran Majid, Furqan Hamid. And I pray God grant us the capability and understanding the holy verses and holy order of the Quran Majid, Furqan Hamid. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, and keep watching this program intensely and remain with us. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا
قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. In Roman, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. In Urdu, और वही है जो बरसाता है मैं इसके बाद के लोग मायूस हो चुके होते हैं और फैला देता है अपनी रहमत को, और वही कारसाज हकीकी है, सब तारीफों के लायक है. In English, and it is he who sends down rain after they have despaired and spreads out his mercy, and he is the protector praiseworthy. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. In Urdu, और उसकी कुदरत की निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की तख्लीक है और जो जानदार उसने फैला दिए हैं आसमान और ज़मीन में. In English, and of his signs is the creation of the heavens and the earth, and of whatever moving creatures he has spread forth in them. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. In Urdu, और वो जब चाहे उनको जमा करने पर पूरी कुदरत रखता है. In English, and he has the power to gather them together when he pleases. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. In Roman, وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. In Urdu, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है तुम्हारे हाथों की कमाई के सबब पहुंची है, और वो करीम दरगुजर फरमा देता है तुम्हारे बहुत से करतूतों से. And whatever affliction reached you is due to what your hands have earned, and he pardons much. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. In Urdu,
और तुम आजिज नहीं कर सकते अल्लाह ताला को जमीन में, और न तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त है और न कोई मददगार। In English, and you cannot go out of his control in the earth, and you have against Allah neither a friend nor a helper. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ वमिन आयातिहिल जवारि फिल बहरि कल अअलाम। इन उर्दू, और उसकी कुदरत की निशानियों में से वो समंदर में तैरने वाले जहाज हैं जो पहाड़ों की मानंद हैं। In English, and of his signs are vessels running in the sea like hills. नाज़रीन किराम, इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला की अफ़आल को बयान किया जा रहा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के वो काम जो फ़कत उसी के साथ मंसूब है, कोई इंसान उसमें शामिल नहीं है, उनको बयान किया जा रहा है। बहुत से काम ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह अंबिया को वसीला बनाता है, औलिया को वसीला बनाता है। बहुत से काम ऐसे हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि तुम्हें ये ताकत अता की है, जाओ ऐसा करो। चुनांचे हम देखते हैं कि इंसान को अल्लाह ने चलने फिरने की ताकत दी है, उसे कहा जाता है कि जाओ अपनी रोज़ी के लिए मेहनत करो, मुशक्क़त करो। चुनांचे इंसान घर से निकलता है, शाम को अल्लाह उसे रिज़्क़ वाफ़िर अता फरमाता है। इसी तरह चरिंद परिंद है, उनसे कहा जाता है कि तुम्हें उड़ने की ताकत दी है, जाओ खेतों में जाओ बाजरा चुनो। उनको वहाँ जाने की तलकीन है। ये दरख्त, ये प्लांट्स, ये भी जानदार हैं, लेकिन चूंकि चल नहीं सकते, इनके पास ज्वाइंट्स नहीं हैं, मुतहर्रिक नहीं है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला वहीं खड़े खड़े उन्हें आसमानों से मींह बरसाता है। कभी उसको खेती में पानी, जो काश्तकार है वो पानी देता है, और फिर उसके बदले में वो उन्हें फल देता है। तो जो हिल नहीं सकता उसका रिज़्क़ वहीं एहतिमाम कर दिया गया है, पानी इसे मिल जाता है। सूरज किरणें पड़ती हैं तो उसे क्लोरोफिल मिल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बड़े बड़े काम हैं। मिसाल के तौर पर सूरज को उसने बनाया है। कोई इंसान चाहे कि उसे फूंक मारकर बुझा दे, नहीं बुझा सकता। ये चांद अल्लाह ने बनाया है। ये आसमान जो मीलों दूर तक, हद्दे निगाह तक नीलगो आसमान की चादर तनी हुई है, ये किसने की है? अल्लाह तबारक व तआला ने इसे पैदा फरमाया है। ये ज़मीन जो कि जिसपे आज 6 अरब से ज़ायद इंसान मौजूद है, जिसमें सारे के सारे मादनियात के ख़जाने हैं, रिज़्क़ के ख़जाने हैं, जिसमें समंदरों की वसाअत है, जिसमें अल्लाह ने रास्ते बना दिए हैं, ये सब काम किसके हैं? अल्लाह के हैं। ज़िंदा कौन करता है? अल्लाह। मुर्दा कौन करता है? अल्लाह तबारक व तआला। इज़्ज़त व ज़िल्लत रब दिया करता है। तो ये रब के वो बड़े बड़े काम हैं जिसमें कोई इंसान शामिल नहीं है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इनको बताकर ये बताना मकसूद है, इंसान के जहन के बंद दरीचों को खोलना मकसूद है कि इंसान वही रब जो सूरज को रोज़ाना पैदा कर देता है। तो देखता है कि सूरज डूब गया है, ख़त्म हो गया, उसका वजूद, उसकी हस्ती मिट गई है, वो मगरिब में जाकर गुरूब हो गया है, लेकिन फिर रब करीम उसको उसी आब व ताब के साथ दूसरे दिन मशरिक़ से निकाल देता है, दूसरी उसकी पैदाइश कर देता है। ये चांद महीने पर जाकर ख़त्म हो जाता है। चांदनी 14वीं चांदनी 14वीं रात को उस पर जोबन आता है, फिर वो ढलना शुरू कर देता है, मर जाता है, फिर दोबारा उसकी बर्थ होती है, पैदा होता है। फिर हमें बारीक एक बच्चा जिस तरह छोटा सा होता है, चांद नज़र आता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो अल्लाह फरमाता है जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम मार कर फिर जिंदा कर देते हैं, तो इंसान तेरी क्या हकीकत है? हम जब तुझे मौत देते हैं तो फिर तुझे दोबारा पैदा करने की भी ताकत रखते हैं। हम तो कुन फयकून का हुक्म देते हैं, हर चीज़ हो जाया करती है। लिहाजा इंसान बज़ाहिर मर जाता है, लेकिन अब उसकी दूसरी हयात, हयात बरज़खी शुरू हो जाती है। कब्र में चला जाता है, कब्र में सवालात और जवाबात होते हैं, और फिर उसके बाद जो में महशर बर्पा होगा, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना होगा। और अल्लाह तबारक व तआला पहले की तरह इंसान को मिन व अन, उन्हीं आज़ा, उसी शक्ल व शबाहत के साथ और उसी पोर्स के साथ, उंगलियों के निशानात के साथ अल्लाह उसको पैदा फरमाने की कुदरत रखता है। और फिर इसके बाद हमें बताया गया कि इंसान अगर तुझे कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो तेरे गलत अमाल की वजह से, नाफरमानी की वजह से, तेरी गलत हरकत की वजह से, तेरे गलत करतूतों की वजह से तुझे ये सारी तकलीफ देती। अल्लाह तकलीफ देना नहीं चाहता।
अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम व करीम है, और अगर तेरी हर नाफरमानी पे वो सज़ा देना शुरू कर दे तो इंसान तो 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारा ये हाल है कि हमारा कोई मुलाजिम हमारे हुक्म आदूली कर दे, हम फ़ौरन उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसा करना शुरू करें तो आप सुबह से लेकर रात तक कितनी नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के अहकामात कितना वायलेशन करते हैं। आप अगर कहीं बाजार में हैं तो क्या आप ऐब बताकर माल बेचते हैं? नहीं जनाब। क्या आप चोरी चकारी का माल नहीं खरीदते? क्या आप सिफारिश और रिश्वत के मामलात नहीं करते? तो ये सारे अहकामात इलाही से मुतसादिम है, लेकिन वो कितना बड़ा रहीम व करीम है, दरगुजर करता है, इंसान को मोहलत देता, आ तौबा कर ले, सुधर जा। तो अल्लाह इंसानों पर जुल्म नहीं किया करता, और इंसान खुद अपने गलत हरकत की वजह से या गलत प्लानिंग की वजह से ऐसा होता है। इंसान सोचता है मैं बड़ा अच्छा प्लानर हूँ, गलत प्लानिंग कर जाता है, सब कुछ दिवालिया हो जाता है। अगर ये कहे कि ए अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बड़ा रहमान है, रहीम है, तेरे नाम के साथ शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा ईमान है कि ना सिर्फ शुरू में बल्कि आखिर में भी पूरे काम में, प्लानिंग में अल्लाह की माहियत और रिफाकत साथ रहा करती है। जब अल्लाह साथ हो जाए तो फिर उसे किसी नुकसान का खौफ बाकी नहीं रहता। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मकाम तवक्कुल पर फाइज फरमाए और तवक्कुल की सही तौर पर अपनाने को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खलक़ल इंसान